ओके, सो अब जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन होता है ना, दैट इज देन अगेन द एंटायर पर्पस ऑफ द 2 डे 3 डे डिबेट जो आप लोग करते हो, राइट? अब उसमें देयर इज ए प्रॉब्लम जिसको हम प्रीएम्बुलेटरी क्लॉज में रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड देन देयर सॉल्यूशंस जिनको हम ऑपरेटिव क्लॉजेस में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? अब वो आई कैन शो यू हियर, एक सेकंड। अच्छा देखो, अब ये सारे प्रीएम्बुलेटरी क्लॉजेस हैं जिनको आप आज क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे अगर हम वॉर की बात करते हैं तो यू कैन से deeply disturbed by the ongoing war in Palestine, which has led to displacement of refugees XYZ, right? फिर emphasizing the need for international intervention within the state of Israel. Uh, alarmed by हाँ, alarmed by the casualties that were caused by the a war on Palestine by Israel, killing 10,000 people. ठीक है? This is how you do it. Uh, फिर when you're giving a solution, आप कर सकते हो welcomes the solution proposed by the delegate of South Korea to finish the war by coming up to a ceasefire, इस तरह करके। but इतने bland solutions होते नहीं, they're usually very comprehensive solutions, but just to give you an example, right? Requests the UN to intervene within this problem and call for a ceasefire, इस तरह करके you have to मतलब you're obligated to use these clauses when you're क्या कहते हैं making a resolution। अब उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है कि एक सेकंड, राइट? सो अब unlike a working paper you need to follow a strict format, right? You keep it times new roman, आपके headings का size 12 होता है, ठीक है? फिर आपकी body का size 11 होता है, the headings bodies। You italicize your preambulatory clauses and then you underline your operative clauses, ठीक है? और फिर जो आपके operative clauses होते हैं, they're also numbered, operative 1, operative 2, operative 3, operative 4, ठीक है? And then again the format will vary depending on which rules of procedure you're following, ठीक है? So we'll look at the क्या कहते हैं sample that H1 has provided, and then we'll look at something that a friend of mine wrote, ठीक है? Okay, so a crisis note है, directive, draft resolution, ठीक है? अब इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में शुरू वाला फॉर्मेट इज द सेम, आप अपनी 4 चीजें लिखते हो, ठीक है? अब इन्होंने लिखा हुआ है नोटिंग नोटिंग इट्स रेजोल्यूशन A3689 ऑफ December 1981, द डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कंसर्निंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ मास मीडिया टू स्ट्रेंथनिंग पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। अब उन्होंने एक ऐसी रेजोल्यूशन मेंशन कर दी जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? दिस विल सेट अ प्रेसिडेंट फॉर देयर सॉल्यूशंस। Noting further, recognizing that the problem of news flow imbalance is that two-way information among countries of a region is either non-existent or insufficient, and information exchange between regions of the world is inadequate. Right? अब उन्होंने एक प्रॉब्लम मेंशन कर दी है कि जो कंट्रीज आपस में टू वे इंफॉर्मेशन शेयर करती है ना, वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ना हो, बेसिकली, राइट? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान में women don't have any rights, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, whereas I saw this Twitch streamer जो अफगानिस्तान में फिर रहा है, and women there are also moving around freely, but with the uh, condition that they're wearing hijabs and veils, right? But still they're moving outside. So this is what the clause is saying, कि there is a problem कि information इस तरह से सही तरह गैदर या स्प्रेड नहीं हो रही, राइट? तो अब दैट लीड्स टू मिस इन्फॉर्मेशन और say non-existent basically information exchange हो रही है। Realizing the need for all sovereign nations to maintain integrity and play an active role in the international system, right? अब इसका ये है कि अब ये वाला जो क्लॉज है ना, ये हाईलाइट करे कि देयर इज ए स्पेशल नीड कि जो इंटरनेशनल कंट्रीज है ना, जो सॉवरेन कंट्रीज है दैट हैव देयर ओन बॉर्डर्स, वो इसको क्या कहते हैं कर्ब करने के लिए कुछ करें, राइट? अब उसको कर्ब करने के लिए क्या कर रही है, वो आती है नंबर क्लॉजेस। अब नंबर क्लॉजेस के ऑपरेटिव्स। अब जो नॉन नंबर क्लॉजेस होते हैं ना, उनको आप करते हो इटैलिसाइज। अपने आप लोग एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोलो, राइट समथिंग डाउन, एंड देन उस सारे को ना इस तरह सिलेक्ट करके प्रेस कंट्रोल आई, तो ना वो खुद ही इटैलिसाइज हो जाएगा। अब इटैलिसाइज क्या करना है, कैसे करना है, वो बेसिकली जो ये नीचे क्लॉजेस है ना, ये वाले,
प्रिएम्बुलेटरी फ्रेजेस, ये यहाँ तक वेलकमिंग तक लेके, उन सबको दी ओनली दोज पार्ट्स, जैसे कि रियलाइजिंग है तो उसने सिर्फ ऊपर रियलाइजिंग को किया हुआ था, नोटिंग आ गया, चलो खैर, अगर नोटिंग फर्दर है तो उसने सिर्फ नोटिंग को ऊपर इटैलिसाइज किया, राइट? So you're supposed to italicize the start of a phrase, and you're supposed to start a phrase with these preambulatory clauses, right? Because उससे differentiate ये होता है कि you're trying to mention a problem, right? देखो जैसे ये स्टार्ट में, ये स्टार्ट में, ये स्टार्ट में, बाकी सारा सीधा है, ठीक है? दीज आर नॉन नंबर्ड, ही नंबर्ड नहीं होता है, एंड इसमें बस आप प्रॉब्लम्स अपने मेंशन करते हो, राइट? देन कम दी ऑपरेटिव, जो थोड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, और ये जो होते हैं ना प्रीएम्बुलेटरी क्लॉजेस, इनमें यू कैन नॉट हैव ए सब क्लॉज, और इनमें दीज एंड विद कॉमास, इनमें आप किसी भी पूरे डॉक्यूमेंट में आप नहीं लगा सकते। आई हैव टू लीव द मीटिंग, हाँ मैं शेयर कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। Right. So one thing that I did not mention about preambulatory clauses is that all of these end with a comma. क्योंकि एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में देयर इज ओनली वन फुल स्टॉप, और वो होता है डॉक्यूमेंट के एंड पे, यहाँ पे, ठीक है? विच इंडिकेट्स डॉक्यूमेंट खत्म हो गया। एनीवेयर इफ यू पुट ए फुल स्टॉप, योर डॉक्यूमेंट एंड्स देयर। जैसे अगर हम यहाँ पे लगाते हैं ना फुल स्टॉप, तो फिर यहाँ से लेके एंड तक आपकी सारी डॉक्यूमेंट को ना ये लोग डिलीट कर देंगे, बिकॉज दे विल, इसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट हो गई है खत्म, ठीक है? सो प्रीएम्प्स द प्रॉब्लम्स होते हैं द एंड विद कॉमास, ठीक है? एंड ऑपरेटिव्स पहली बात नंबर्ड एंड अंडरलाइंड, ठीक है? अब इसमें व्हाट हैपेंस इज के यू क्रिएट सब क्लॉजेस फॉर ऑपरेटिव्स। अब हाउ डू यू डू दैट इज के देयर इज टू वेज टू मेक एन ऑपरेटिव, वन इज विद अ सब क्लॉज एंड देन द अदर इज विदाउट अ सब क्लॉज, ठीक है? तो व्हेन यू आर मेकिंग वन विदाउट अ सब क्लॉज, व्हाट यू डू इज के, ये देखो, व्हाट यू जब आप इसको सब क्लॉज के बगैर बनाते हो ना, तो आप कौन से वाला ले लें हम, चलो विल टेक थ्री फॉर एन एग्जांपल। जब आप सब क्लॉज के बगैर बनाओगे तो you're supposed to end it with a semicolon, ठीक है? यहाँ पे तो फुल स्टॉप है because it's the last clause, but any sub clause, any clause that is an operative will always end with a semicolon, ठीक है? This is a little gut wrenching या थोड़ा difficult है to understand, but you will get a hang of it once you start doing it, right? And when you're introducing a sub clause, you will add a colon, ठीक है? एंड फिर कोलन दबा के आप एंटर दबाओगे, एंड देन यू विल प्रेस द टैब बटन। वो है आपके कैप्स लॉक के ऊपर, आप लोग अपने कीबोर्ड चेक कर लो, आपके उसके ऊपर एक टैब है। आई विल शो दैट टू यू एज वेल, एक सेकंड, लेट मी ओपन ए फाइल। अच्छा, आई विल चेंज, अच्छा ये देखो, सो दिस इज माय थिंग, एंड यहाँ पे ना मैंने ऑपरेटिव बना दिया कि अंडरस्टैंड्स एक्स वाई जी बाय डूइंग। अब फुल स्टॉप and then you press tab, तो ये ना आपको automatically sub clause दे देगा, right? And if you want to create a sub clause, तो फिर you put a colon again, and then you put tab दोबारा से, तो फिर ये ना आए पे आ जाएगा, right? एक सेकंड, ये मैं zoom भी कर लेता हूँ, ये देखो। And then when you're, एक सेकंड, हाँ, and when you're done with the entire thing, you just put a semicolon at the end, ठीक है? So instead of showing this, I will show you the document that a friend of mine made, that is very easy to understand. Draft solution, yes. Second, I'll share. Okay. So very simply, draft solution 1.x, यहाँ पे full stop आ सकता है because ये 1.x है, ठीक है? कमिटी टॉपिक स्पॉन्सर्स नहीं लगाए as they should have, और फिर जनरल असेंबली, they highlighted the organ जिसको ये लोग दे रहे हैं, ठीक है? Guided by the rules and regulations of the UNC, ठीक है? Fully aware of the rising rates of terrorist activity stemming from the increased number of undocumented, अब उन्होंने एक प्रॉब्लम डिफाइन कर दी,
रिकग्नाइजिंग लैक ऑफ लॉ रीइंफोर्समेंट अकाउंटेबिलिटी, ये फिर से उन्होंने एक प्रॉब्लम डिफाइन कर दी। अब इस सारे में यू कैन सी इटैलिसाइज किया हुआ है, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू बी वेरी ऑफ, एंड ए ड्राफ्ट रेजोल्यूशन इज समथिंग दैट द चेयर्स लुक एट वेरी हाईली, ठीक है। कॉमास 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 हियर एज वेल। अब देव कम टू ऑपरेटिव्स, ठीक है। अब ऑपरेटिव्स पे आए, अंडरलाइन कर दिया, वेरी गुड। सब क्लॉज क्रिएट करने के लिए दे पुट एक कोलन, फिर वन, फिर ए पे गए। अब ए का मजीद सब क्लॉज नहीं था तो यहाँ पे सेमी कोलन, फिर यहाँ पे सेमी कोलन, फिर यहाँ पे सेमी कोलन, एंड फिर ये डी के बाद ही हैड टू इंट्रोड्यूस a sub clause which is a sub clause का sub clause, so he put a colon again and then he went on writing what he wanted to, फिर उसको एंड कर दिया सेमी कोलन से, ठीक है। uh, फिर अगेन ई के लिए सेम, एंड देन फॉर आई ही पुट अनदर सब क्लॉज, राइट। उसने आई को किया, एंटर दबाया, टैब दबाया, दोबारा वो आ गया, ठीक है। सो बाकी रेजोल्यूशन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू नाउ is के